So in case of our actually yesterday's screen, I have kept. Stop share. Okay, so I have kept yesterday's screen. तो उसी को हम लोग कर देंगे, है कि नहीं? नो मैक्स तो भीतर आने के बाद अंदर लूस जाते हैं पे वो चलिए. सो now actually always remember, why are we writing it in this pattern? We are writing it in this pattern because your first codon is UUU. You can always ask a question that why we are writing in UCAG format. तो UCAG format लिखने का पीछे कारण क्या है? That actually we will use what? In case of your UCAG pattern, so why are we following it? Because the first codon that was discovered is called your what? Is called UUU. So that is why in order to give UUU, we wrote U. जब U लिख रहे हैं तो अगला वाला pyrimidine ले लिए, दिक्कत क्या है? चलिए, so this is the dibba that we were making yesterday and now we will fill it up. Okay, तो इसको हम लोग filling करेंगे. So that is why in case of filling it, okay, so here we will put one G. Okay, actually it is this. Fine. So in case of filling it, so we will remember which amino acid it codes for. Okay, so which amino acid it codes for, that we will write. Okay, so now all of you are ready, so we should start. So this is what I call your abacus formula, है कि नहीं? So इसको I call it abacus formula. Now in case of abacus formula, हम लोग क्या करेंगे? तो we will remember the amino acids and we will remember how to remember it also. Okay, because we will remember how to remember it also, because it will help. Okay, UCA. अच्छा, तो सेव करते समय ये भी आ गया है, सो इसीलिए फोटो. चलिए, so that is why how we will fill it up. And we'll also discuss the properties. ठीक है? चलिए, so now let's go ahead. So actually, if you are seeing here, always remember you first fill up the first two codons, then you actually record the UCAG, 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 UCH. चलिए, so now in case of genetic code, हम लोग का इधर इसको याद करने का पहले मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला सिखाऊंगा. ओके, सो नाउ द फर्स्ट टू कोडॉन्स, है कि नहीं? जो फर्स्ट टू कोडॉन्स है उसके इसका एक एमिनो एसिड होता है. ओके, सो फर्स्ट टू कोडॉन्स codes for one amino acid. ठीक है? Then all the 6 codon code for the next. Okay? तो पहले जो है
ओके, तो फर्स्ट जो 2 कोडॉन्स है, इट इज कोडिंग फॉर द फर्स्ट अमीनो एसिड, देन all the 6 codons code for the next. ठीक है, कोड फॉर द नेक्स्ट कोडॉन। ठीक है जी, एमती डब्बा सब कर दियो, मेक डब्बास, या यू कैन कलर देम आल्सो। उसके बाद 3 विल कोड फॉर 1, एंड जो 4th वन है वो यूनिक है, तो उसको आप अलग से कलर करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्ट कोडॉन, उसको हम हाईलाइट करेंगे, जे सिंगल कोडॉन। ठीक है, तापरे all four all four all four okay, all four means all these 4 codons will code for the same amino acid। उसके बाद आ जाएगा 2 2 2 2। ओके, तो इसीलिए नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 2, फर्स्ट 2, ओके, देन नेक्स्ट 2, then next 2, okay, then next 2, then next 2, then next 2, and then next 2। अंडरस्टैंड? तो ये आपका अलग अलग कोडॉन्स हैं। ठीक है, तापरे इसमें जो 2 कोडॉन हमने रोक दिया बीच में, दे आर ऑल्सो यूनिक कोडॉन्स। ओके, तो एक को हम करेंगे, ये सब स्टॉप कोडॉन्स हैं इसलिए उसको पिंक से दिखाएंगे, एंड सपोज एक को हम दिखाएंगे येलो से, एंड उसी तरह यहाँ भी दिखाएंगे सपोज येलो से। सो दीज 3 आर स्टॉप कोडॉन्स, तो उसको हम शेड कर देंगे। तो जो स्पेशल कोडॉन्स है उसको हमने शेड कर दिया, बाकी हमने डिब्बा बनाया है। ओके, सो नाउ वी विल मेक द डिब्बा अगेन। सो ये 2, ये 1, तो दिस 1 will code for 1 amino acid, फिर all 4, ओके, इधर all 4, फिर यहाँ 2, and यहाँ 2। So have you done like this, all of you? समझ में आया? तो this is what we call degenerate codon। तो degenerate codon का मतलब क्या है? That there are more than one codons with which will code for the same amino acid। Okay, so this is the case। Now अब हम लोग fill up करेंगे amino acid। ठीक है, so now we will fill up। So the first amino acid is, इधर आप ट्रिपल लेटर एंड सिंगल लेटर कोड लिखेंगे। तो ट्रिपल लेटर कोड आप लिखेंगे PHE, एंड सिंगल लेटर कोड लिखेंगे F। अंडरस्टूड? सो इसका मतलब क्या है? दैट UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तापरे जो 2 है, 2 नहीं ये सारे, सो तापरे जो 2 है, दिस कोड्स फॉर ल्यूसीन, LEU, कॉमा L। ओके, ल्यूसीन
comma L. So this codes for leucine. ठीक है. एंड सिमिलरली जो नीचे वाले जो चारों डिब्बे हैं, इट विल ऑल्सो कोड फॉर ल्यूसीन, है कि नहीं? सो जो ऑल द 4 बॉक्सेस विल कोड फॉर ल्यूसीन. ओके, तो इसका मतलब ल्यूसीन इज कोडेड बाय 6 कोडॉन्स. 2 + 4 6 कोडॉन्स. हो गया. तापरे जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इज आइसोल्यूसिन. ओके, तो ILE, I. ओके, तो आइसोल्यूसिन का कोड क्या है? ILE, I. एंड ये आपका तीनों, ऑल द फर्स्ट 3 कोडॉन्स आर ऑफ विल कोड फॉर आइसोल्यूसिन. ठीक है. नाउ इधर हम लोग मार देंगे हार्ट, बिकॉज ये स्टार्ट है. एंड इधर हम लोग मार देंगे स्टार, क्योंकि ये स्टॉप है. ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये रहा. ये है स्टॉप, ये है स्टॉप, एंड ये है डिलीट. सो ये 3 आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं, इसलिए उसको अलग से हाईलाइट कर देंगे. ओके, these ones are the stop codons. ठीक है, इसलिए उसको हम लोग स्टॉप लिख देंगे. एंड ये आपका स्टार्ट कोडॉन है, तो इसलिए हम उसको हार्ट लगा देंगे. स्टार्ट कोडॉन हम लेफ्ट में लिख देंगे. ओके, नाउ स्टार्ट कोडॉन का मतलब क्या है हम आगे बात करेंगे. समझ में आया? सो मतलब क्या है कि अगर आपका mRNA में ये कोडॉन नहीं होगा तो इट विल नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. वो प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन ही नहीं करेगा. डू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट. अब जो इधर हम लोग लिखेंगे MET, M. ओके, सो विल राइट MET, M. ओके, मेथियोनिन, M. हो गया. तापरे all these 4, so they code for valine. VAL, V. All these 4 code for valine. समझ में आया? तो इसीलिए ये 4 के 4 आपका किसके लिए कोड करते हैं? वैलिन के लिए. नाउ ऑल दिस 4, तो इसको हम लोग SPTA लिख लेंगे. इजी टू रिमेम्बर. S is the single letter code of serine. ओके, ये नाम है. ट्रिपल लेटर कोड है SCR, सिंगल लेटर कोड है S. ठीक है. सो ऑल दिस 4 कोड फॉर सेरीन, है कि नहीं? इधर जगह है तो लिख लेते हैं हम लोग. वैलिन, ओके, वैल. ओके, so we'll write valine, वैल. ठीक है. सो ये हमने लिख लिया, वैलिन, वैल. नाउ ये जो है आपका प्रोलीन. ओके, दिस इज प्रोलीन, प्रो. प्रोलीन, प्रो, P. Okay, so this is the name of this amino acid. Okay, उसके बाद आ जाएगा हमारा SPTA. मैंने बोला था आपको, T से क्या होता है? थ्रियोनिन. ओके, ओके, दिस इज थ्रियोनिन, THR. ओके, T. So these are the single letter code जो मैंने आपको
11th बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था. ओके, सो सेम कोडॉन इज यूज्ड हियर. फाइन. तो दिस इज SPT. इधर आ जाएगा A. इसमें भी हम लिख सकते हैं. जो जगह अच्छी लिखी दे चलो. ल्यूसिन कॉमा ल्यू है कि नहीं. जगह है तो लिख लो, दिक्कत किस है. फाइन. सो दिस इज द केस. ल्यूसिन कॉमा लेल हो गया. एंड ये आपका A है. A स्टैंड्स फॉर एलानिन है कि नहीं. तो A स्टैंड्स फॉर एलानिन कॉमा आला कॉमा A. ओके, alanine comma ala comma A. So this is the 3 different codes. तो समझ रहे हो, ये आपका 2 2 2 2 हो गया. ठीक है जी. तो सही पे इस हाउ टू रिमेम्बर इट. FLIMV SPTA. समझे कि नहीं. आप कैसे याद रखेंगे. FLIMV एंड SPTA. ठीक है. तो इसी तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं. कौन है क्या उधर क्लास में. नहीं, ओनली 29 पीपल हैव ज्वाइंड. बाकी सब फरार. हाँ, सर मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लूं कौन सा. इनका. नहीं, थोड़ा देर रुको. मैं आई हैव अलाउड देम ना, कि मैं उनको ओके सर. अलाउ किया है हाफ टाइम तक. हाफ टाइम के बाद तुम लोग में से कोई आने का भी नहीं कोशिश करेगा. अंडरस्टूड. मीन्स अगर हाफ टाइम के बाद किसी ने परमिशन मांगा तो मैं उसको गोली से उड़ा दूंगा. समझ में आया. तो ये आपको याद रखना है. सो नोबडी विल अप्रोच इवन आफ्टर हाफ टाइम. ओके. यस सर नो तो बोल दिया करो. यस सर. हाँ. यस सर. तो अभी हाँ, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. एक सेकेंड रुक जा, मैं बड़ा कर देता हूँ. हाँ, इधर आधे हैं. एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर नेक्स्ट पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए, हो गया. now we will go back to our क्या. we'll go back to our whiteboard. क्या white board बोल रहा हूँ. our जो हम लोग कर रहे थे. ये उड़ जाता है ना, उसको लाना पड़ेगा फिर वो स्क्रीन. यही सब टेंशन है जूम का. वो स्क्रीन लेके आना पड़ेगा. चलिए. सो नाउ इन केस ऑफ आवर, तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट रो में कौन कौन सा अमीनो एसिड है. फ्लिम, FLIMV. ओके. सेकेंड रो में कौन कौन से हैं. SPTA. ठीक है जी. तो आपको इसी तरह से उसको याद रखना है. फाइन. चलिए, तापर हमें पड़ेगा तो द नेक्स्ट अमीनो एसिड. चलिए, तो अब जो हमारा है, सो वी विल राइट इधर. सो ये जो 2 अमीनो एसिड्स है, दे कोड फॉर टाइरोसिन कॉमा वाई. ओके. तो टाइरोसिन का शॉर्टकट होता है वाई. तो दे कोड फॉर टाइरोसिन और वाई. हो गया. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइरोसिन. उसके बाद आपका 2 स्टॉप कोडॉन्स है. ठीक है जी. तो उसको हम लोग लिखेंगे स्टॉप. ओके, वी विल राइट स्टॉप
एंड एक और बार वी विल राइट स्टॉप, फाइन। एक और बार हम लिखेंगे स्टॉप। सो ये दोनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। एक और बार यहां भी लिखेंगे हम स्टॉप। ओके, सो दिस इज ऑल्सो स्टॉप, फाइन। ये यूजीए, तो ये भी आपका स्टॉप कोडॉन है ना। इधर एक हम व्हाइट डिब्बा बना देते हैं, है कि नहीं? सो वी विल मेक अ व्हाइट डिब्बा, ठीक है, ताकि हम लिख सकें ना। उसके बाद जो है, अब ये जो है ये आपका दो दो एमिनो एसिड्स होगा। ओके, तो उसमें आ जाइए 2 एमिनो एसिड्स एट ए टाइम, फाइन। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? एच, माउस टाइड काम नहीं कर रहा। चलिए, सो उसके बाद आ जाइए हिस्टिडीन। ओके, HIS, ये क्या हो गया हमारा? दिस इज हिस्टिडीन, ओके, कॉमा H, फाइन। तो हिस्टिडीन का कोड क्या है? HIS कॉमा H, ठीक है। सो दैट इज द कोडॉन दैट स्टैंड्स फॉर हिस्टिडीन, ठीक है। वो हिस्टिडीन के लिए हो गया। तापरे आसीजिब एस्पार्जिन, ए कौन? ग्लूटामिन, HQ, आ जाओ, HQ, तो इसका है ग्लूटामिन, GLN कॉमा G, एक कौन? Q, ग्लूटामिन, तो GLN कॉमा Q, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एस्पार्जिन। देखो ये रिलेटेड कोडॉन्स आ गया, ये आ गया एस्पार्जिन कॉमा N, है कि नहीं? तो ये हो गया एस्पार्जिन कॉमा N। सो दीज आर 2 रिलेटेड कोडॉन्स, ग्लूटामिन एस्पार्जिन पास पास हैं, एंड बोथ ऑफ देम कोड फॉर व्हाट? एमाइड कंटेनिंग ग्रुप्स, अगर आपको ध्यान है तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इधर आ जाएगा आपका, दिस इज योर व्हाट? लाइसिन, LYS कॉमा K, ओके, LYS कॉमा K, सो दिस विल कोड फॉर लाइसिन। उसके बाद आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, ASP कॉमा D, ओके, ये एस्पार्टिक एसिड हो गया। एंड ये भी रिलेटेड कोडॉन्स है, ये प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दिस इज योर ग्लूटामिक एसिड, GLU कॉमा E, ओके, तो ग्लूटामिक एसिड, तो GLU कॉमा E हो गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? Y स्टॉप स्टॉप HQNKDE, Y स्टॉप स्टॉप HQNKDE हो गया। उसके बाद ये जो है ये है आपका सिस्टेइन। सो दिस एमिनो एसिड इज C, stands for सिस्टेइन कॉमा C। उसके बाद आपको मालूम है 2 स्टॉप होता है, एंड लास्ट वाला जो है
that is the most essential amino acid, that is tryptophan, TRP और W. ठीक है, दिस इज TRP और W. उसके बाद आ जाएगा ये जो चारों के चार है, दिस विल बी कोडिंग फॉर आर्जिनिन, ARGININE, कॉमा ARG, कॉमा R. ठीक है, तो आर्जिनिन, सो ये आपका अमीनो एसिड है आर्जिनिन. क्लियर? उसके बाद ये जो दो अमीनो एसिड है ये आ जाएगा सेरीन. तो सेरीन ऑलरेडी हमारा अच्छी, बट वो फिर ये है सेरीन कॉमा एस. ओके, ये सेरीन कॉमा एस है. उसी तरह ये आ जाएगा आपका आर्जिनिन, ARG कॉमा R. ओके, ARG कॉमा R. फाइन. एंड ये लास्ट के चारों के चार आ गए आपके ग्लाइसिन. ग्लाइसिन कॉमा GLY कॉमा G. ओके, तो ग्लाइसिन. फाइन. सो GLY कॉमा G. इज इट ओके? Yes, sir. तो धड़ाधड़ एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम लोग चलेंगे आगे. सो ये सर? आपका, हाँ बोलो. सर आर्जिनिन को सर 6 कोडॉन्स कोड करते हैं. हाँ, आर्जिनिन का 6 करते हैं. ओके, तो 6 कोडॉन्स फॉर आर्जिनिन. ओके, ये हम लिखेंगे, डोंट वरी, पहले इसको समझ लो, फिर हम लोग आगे जाएंगे. ओके, तो आपको पता होना चाहिए फ्लिम SPTA YHQNKDE CRSRG. हो गया. सो ये हमारा, हमने क्लोज किया स्क्रीन एंड इसको बंद कर देंगे. हो गया सबका कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम लोग चलेंगे आगे. नाउ उसमें जो हमारा कंसेप्ट है, अगेन आप एक बार देख लीजिए उसको, बैक ऑफ द माइंड. तो आप देखिए SPTA YHQNKDE CWRSRG. ठीक है. नाउ इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डिब्बा सिखाऊंगा जिसको मैं कहता हूं एबैकस. ओके ना, एबैकस में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे छोटा सा डब्बा बनाएंगे. फाइन. एंड इस छोटे से डिब्बे में हम लोग क्या करेंगे, और दो छोटा सा डब्बा बनाएंगे. ये आपका 4 बेसिस हो गया, 4 डिब्बा. और भी छोटा बनाने से चलेगा, इतना मोटा बनाने की जरूरत नहीं है. वी कैन मेक इट फर्दर स्मॉलर. जितना छोटा बनाओगे उतना याद करना आसान हो जाएगा. फाइन. सो ये 2 बॉक्स हैं, फिर ये 2 बॉक्स है कि नहीं. उसी तरह ये 2 बॉक्स एंड ये 2 बॉक्स. क्लियर? तो एटा होची हमर कौन, दिस इज दी 4x4 बॉक्स. तो एंड हमको मालूम है हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं,
you see 24 UCAG। ओके, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं? UCAG। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी राइट द केस। ऊपर भी उस तरह से लिख लेंगे, UCA एंड जी। एंड इधर तो 4-4 बार लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इसको ब्रेकअप करेंगे। ओके, तो ब्रेकअप क्या करेंगे? आपको मालूम है कि इधर जो है, फाइन, सो यू नो कि ये 2 बेस होता है, तो उसको आधा शेड कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें 3 बेस होता है, इसको ऑलमोस्ट 3/4 शेड करेंगे, है कि नहीं? ऑलमोस्ट 3/4। फिर ये 2 बेस आधा आधा शेड करोगे, फिर 2 बेस, फिर 2 बेस, ओके, फिर 2 बेस, ओके, फिर 1 बेस, फिर 2 बेस, है ना? सो इस तरह से आप करेंगे। एंड अब हम लोग उसमें शॉर्टकट्स लिख देंगे। तो आप जस्ट टू रिमेम्बर कहना, ये आपको दोनों तरफ से याद दिलाएगा। एक तो नंबर ऑफ बेसेस, तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, F2 L6 I3 M1 V4। समझ रहे हो? फ्लिम, FLIMV, फ्लिम। उसके बाद S4+2 P4 T4